Hello everyone, I am Shivani and welcome to my YouTube channel Civil Series. So today we are starting with the Lami's theorem. Lami's theorem means when a three forces acting at a point and the point is in equilibrium. Okay. So in this diagram, these are the three forces acting at point. So this point is in equilibrium. Equilibrium means the point is unaffected by the forces. Okay, the point is in rest condition. And the Lami's theorem is applicable to the forces which are coplanar concurrent forces. Coplanar forces means the line of action of these forces is lie in a same plane, and concurrent forces means the forces are meet up at a single point. Okay, so this single point, and the Lami's theorem is applicable to the forces in the same nature. Okay, that is pulling nature or the pushing nature. Lami's theorem: when the three forces acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces. Okay, so Lami's theorem is represented as like that: A upon sine alpha, B upon sine beta, C upon sine gamma. Okay, so in Lami's theorem, this is a force. Okay, and this force is proportional to the sine of angle between the other two forces. Okay, so A is a force and C and B, these are the other two forces, and angle between these two forces is alpha. And in the Lami's theorem, the sine of angle between the other two forces means sine alpha is proportional to that force. Okay, so so in Lami's theorem, A is proportional to the sine alpha, C is proportional to sine gamma, and B is proportional to the sine beta. Okay, so this is the Lami's theorem. Beam. Beam is the structural member in the buildings, bridges, trusses. So beam carry the vertical load or the sometimes horizontal load. So beam is the structural member which carry the transverse loads with the other loading. So beam is the horizontal structural member which supports the transverse loads in addition to the other loading. Transverse loads means these are loads which applied perpendicular to the planar surface of the beam. टाइप्स ऑफ बीम सपोर्ट. अब बीम हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ the supports, different types of support. There are three types of support: fixed support, roller support and pin support. Pin support को हम hinged support भी कहते हैं. So first is a fixed support. अब fixed support हम एक vertical line and हैश की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो फिक्स्ड सपोर्ट में क्या होता है कि उस सपोर्ट की न वर्टिकल डायरेक्शन में ना मूव होता है, न फिर हॉरिजॉन्टल में मूव होता है, न कि उसकी कोई मूवमेंट होती है. दैट इज वो सपोर्ट कभी रोटेट भी नहीं होता. सो हियर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड द मूवमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. Okay, so here I say reaction, not action. Okay, so रोलर सपोर्ट हम एक ट्रायंगल, सर्कल और एक लाइन और हैश की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कई जगह पे सिर्फ सर्कल, लाइन और हैश की मदद से भी रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अब रोलर सपोर्ट का एग्जांपल हम लेते हैं स्केटिंग. सो स्केटिंग की मदद से हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं. ओके, सो स्केटिंग की मदद से हम रोटेट भी हो सकते हैं. बट स्केटिंग अगर हम पहने तो स्केटिंग की वजह से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं. ओके, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, मीन्स कोई रिएक्शन अप्लाई हो रही है. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो वर्टिकल रिएक्शन अप्लाई हो रही है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है. बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम मूव हो रहे हैं और रोटेट भी हो रहे हैं, सो इसलिए वहां से कोई रिएक्शन अप्लाई नहीं हो रही, तो वहां की रिएक्शन आएगी जीरो. ओके, सो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड द मूवमेंट इज इक्वल्स टू जीरो. सो फिक्स्ड सपोर्ट में क्या होता है, वहां से सब फिक्स्ड सपोर्ट में हम ना हॉरिजॉन्टल मूव हो रहे हैं, ना फिर वर्टिकल मूव हो रहे हैं, ना फिर रोटेट हो रहे हैं. सो यहाँ सभी डायरेक्शन में, सभी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रोटेशन में भी रिएक्शन अप्लाई हो रही है. सो इसलिए ये सभी रिएक्शंस नॉट इक्वल्स टू जीरो है. ओके, सो इन पिन सपोर्ट में क्या है, डोर का एग्जांपल लेते हैं हम. अब डोर को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचे तो वहां से डोर अगर हमारे हाथ में खींच के तो नहीं आता, वहां से कोई रिएक्शन तो अप्लाई हो रही है. इसलिए पिन सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि वहां से कोई रिएक्शन अप्लाई हो रही है. और डोर ना हम वर्टिकल डायरेक्शन भी डोर की ना मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में भी ना होती है, क्योंकि वहां से भी
कोई रिएक्शन अप्लाई हो रही है। सो पिन सपोर्ट में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शन होती है। सो दोनों रिएक्शन नॉट इक्वल्स टू जीरो है, बट डोर को हम मूव कर सकते हैं, रोटेट मूव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं डोर को या फिर क्लोज कर सकते हैं, तो वहां पे मूवमेंट अप्लाई हो रही है। सो मूवमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि मूवमेंट पर कोई भी रिएक्शन अप्लाई नहीं हो रही है, तो वहां पर जो रिएक्शन होगी वो इक्वल्स टू जीरो होगी। Types of beam. First is a simply supported beam. Simply supported means the beam which is simply placed on a support. Okay, so generally हम simply supported beam में एक pin support और एक roller support लेते हैं। अगर हमने simply supported beam में दोनों भी roller supports लिए, मान लीजिए हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट तैयार की है और उसके नीचे हमने दोनों रोलर सपोर्ट्स दिए हैं। ओके, सो उस सिटिंग अरेंजमेंट में अगर कोई इंसान बैठा, तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता कि दूसरा इंसान आए तो हम उठ के अपनी जगह चेंज करें, तो हम तो वहां की जगह से सरक के दूसरी जगह पे जाते हैं। अगर वो इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बिना उठ के वहीं से सरके, तो वो जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो रोलर सपोर्ट्स पे दी गई है, तो बिकॉज ऑफ दीज रोलर सपोर्ट्स वो सिटिंग अरेंजमेंट उन रोलर सपोर्ट से नीचे गिर जाएगी। ओके, सो हियर वी प्लेस पिन सपोर्ट, दैट इज हिंज सपोर्ट। अब पिन सपोर्ट में क्या होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको खींच के रखेगा, तो वो सिटिंग अरेंजमेंट उस जगह से गिर नहीं जाती। ओके, so here in simply supported we place two supports, simply supports. Okay, one is pin support and another is a roller support. So this is simply supported beam. Then overhanging beam. Okay, so overhanging beam, hanging means लटकना। okay, जो बीम एक साइड से उस पे कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, सो ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है, अब यहाँ पे देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके, यहाँ पे एक पिन सपोर्ट है, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है, और इस रोलर सपोर्ट के आगे जो भी बीम है तो उस पे यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। ओके, सो ये जो फोर्स है, ये जो बीम है वो ओवरहैंग हो रहा है इस साइड से। ओके, सो दिस इज वन साइडेड ओवरहैंगिंग पोर्शन। ओके, सो ओवरहैंगिंग बीम इज टू टाइप्स, वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम, और अगर यहाँ से भी बीम यहाँ पे होगा तो ये टू साइडेड ओवरहैंगिंग बीम होगा। सो ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक सिंपल सपोर्ट्स यहाँ पे देते हैं और एक साइड यहाँ पे ओवरहैंग हो रहा है। ओके, सो ये ओवरहैंगिंग बीम है। देन नेक्स्ट इज कैंटिलीवर बीम। ओके, सो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, यहाँ पे एक साइड फिक्स्ड होती है। ओके, यहाँ पे एक फिक्स्ड सपोर्ट यहाँ पे दिया जाता है और ये भी बीम है। ओके, सो इस तरह का कैंटिलीवर बीम हम हमारी बालकनीज में यूज करते हैं। सो दिस इज अ फ्री एंड एंड दिस इज फिक्स्ड एंड। और क्या ओवरहैंगिंग में क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल सपोर्ट्स दिए जाते हैं और एक साइड यहाँ पे हैंग होती है। ओके, यहाँ इस साइड से भी हो सकता है या फिर दोनों साइड से हो सकता है या फिर एक साइड से हो सकता है। ओके, सो कैंटिलीवर बीम एंड ओवरहैंगिंग बीम में डिफरेंस क्या है, कैंटिलीवर में एक साइड फिक्स्ड होती है और नेक्स्ट साइड फ्री होती है। ओके, सो ओवरहैंगिंग में एक साइड क्या होती है, यहाँ पे सिंपल सपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और एक साइड फ्री होती है। ओके, देन फोर्थ टाइप इज प्रॉपर्ड कैंटिलीवर बीम। ओके, सो प्रॉपर्ड कैंटिलीवर बीम की तरह ही होता है, बट प्रॉपर्ड कैंटिलीवर में यहाँ पे सिर्फ हम रोलर सपोर्ट देते हैं, जो भी फ्री एंड कैंटिलीवर बीम में होता है उस जगह हम एक रोलर सपोर्ट देते हैं, तो एक साइड फिक्स और एक साइड रोलर होगी, तो उसे हम प्रॉपर्ड कैंटिलीवर कहते हैं। देन फिक्स्ड सपोर्ट, ओके, फिक्स्ड बीम। अब फिक्स्ड बीम में हम दोनों भी जो सपोर्ट है, बीम्स के दोनों भी जो सपोर्ट है वो फिक्स होते हैं इन अ फिक्स्ड बीम। ओके, सो दिस इज फिक्स्ड बीम एंड दिस इज प्रॉपर्ड कैंटिलीवर बीम। सो यहाँ पे तीन रिएक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मूवमेंट, इस साइड पे भी सेम। और प्रॉपर कैंटिलीवर में फिक्स्ड सपोर्ट है, इसलिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मूवमेंट, एंड रोलर में सिर्फ वर्टिकल। कंटिन्यूअस बीम। अब कंटिन्यूअस बीम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ये चार सपोर्ट दिए हैं। सो फर्स्ट सपोर्ट तो हम जनरली कंटिन्यूअस बीम में हिंज्ड सपोर्ट ही लेते हैं और बाद में जो ये सपोर्ट दिए हैं वो रोलर सपोर्ट लेते हैं। ओके, सो अगर यहाँ पे हमने ये रोलर सपोर्ट भी नहीं लिया और ये तीन सपोर्ट भी लिए तो भी हम इसे कंटिन्यूअस बीम ही कहते हैं। तो कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, सिर्फ एक से ज्यादा यहाँ पे स्पैन्स बनते हैं बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट्स। ओके, सो दिस इज द कंटिन्यूअस बीम। टाइप्स ऑफ लोड। सो फर्स्ट इज a concentrated और a point load। अब अभी
यहाँ पे देखिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे पिन सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो इसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। सो इसी L/2 को इग्नोर कीजिए। ओके पहले तो यहाँ पे ये P लोड है। ओके सो यहाँ पे ये पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड अपलोड अप्लाई हो रहा है। सो इस बीम पे यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे इंसान खड़ा है तो वो क्या होगा, पॉइंट लोड होगा। सो इस पॉइंट पे वो अप्लाई हो रहा है। ओके सो दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड और अ पॉइंट लोड। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके सो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड एक यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ओके सो फर्स्ट इज यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मीन्स क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस बीम के हर एक पॉइंट पर सेम लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। ओके सो अब इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम पॉइंट लोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्मली लोड अप्लाई हो रहा है, ओके सो इसको हम क्यू से, यहाँ पे क्यूब से रिप्रेजेंट किया है। तो इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, Q इंटू एल इज दी पॉइंट लोड। ओके सो Q इंटू एल जो भी उसकी वैल्यू आएगी तो वो पॉइंट लोड होगा जो इस बीम पर अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे Q की वैल्यू जो भी Q की वैल्यू हम लेंगे 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके सो किलो न्यूटन पर मीटर ये इस Q का मीन्स यहाँ पे जो यूनिफॉर्म लोड आएगा तो उसका यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर। सो यहाँ पे हम लेंगे कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके और लेंथ ऑफ बीम लेंगे 4। सो 5 इंटू 4 20। सो 20 किलो न्यूटन का जो भी पॉइंट लोड होगा तो वो इस बीम के सेंटर में अप्लाई होगा। ओके सो हम यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, Q इंटू एल। सो जो भी आंसर आएगा, जो भी पॉइंट लोड की वैल्यू होगी तो वो हम इस बीम के सेंटर में अप्लाई करेंगे। देन सेकेंड इज द यूनिफॉर्म वैरिंग लोड। ओके सो दिस इज यूनिफॉर्म वैरिंग लोड। यूनिफॉर्म वैरिंग लोड में क्या होता है कि कोई भी लोड हो, अगर ये बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे सेम लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर एक अलग और एक डिफरेंट वैल्यू का लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसे हम यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड कहते हैं। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ लोड्स। ओके सो फर्स्ट इज द पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड, सेकेंड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और हमने आज और फिर क्या देखा कि टाइप्स ऑफ बीम देखे। टाइप्स ऑफ बीम हम सपोर्ट की वजह से, सपोर्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट्स हम टाइप्स ऑफ बीम में डिवाइड कर, बीम को टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके सो टाइप्स ऑफ बीम क्या क्या देखे हमने, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, प्रॉपर्ड कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम एंड सपोर्ट्स कौन से देखे, रोलर सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट। आज की वीडियो में हमने जो भी देखा, अगर उसकी हैंड रिटन PDF नोट्स आपको चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज डू नॉट forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.